Certain events change the course of human history. They change how people live, how societies function. But they also impact the vulnerable the most. COVID-19 is one such event. We don't know when our lives will go back to being what they used to be. But what about them? With this question in mind, two journalists from Asiaville, Shrutin and Dibyut, left their homes in the middle of the raging pandemic to make people out of statistics. To find their story, to report from the ground. 600 kilometers over 12 days, covering one cataclysmic disruption that made people migrants and destroyed livelihoods like never before. Asiaville presents the Corona Cyclops. So, 8th day of the journey. We're on our way to Auraiya. Yeah, cycling is bloody hard. We take small breaks, lots of waters. Still, my entire body is revolting. But we have to reach Lucknow. Moving from Etawah, our next stop was Auraiya. Yes, that Auraiya where 24 returning migrant laborers died and more than 30 got injured. But with rising mercury, cycling was getting harder each day. So before reaching Auraiya, we took ample breaks every 10 kilometers or so. Not only did these breaks rejuvenated us, but also led us to meet people and their amazing perspectives. मेरा नाम राजेश कुमार पाल है। मैं इस महिबा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, तो उस समय से उसके 15-20 दिन बाद जो थे, भाई पता लगा लोगों को जिस तरीके से कि अब लॉकडाउन बढ़ेगा, तो हमारे गांव के जो मजदूर लोग थे बाहर थे, उन्होंने भाई आने की सिफारिश की। कुछ लोग ट्रकों से आए हैं, कुछ बसों से भी आए हैं, कुछ इस तरीके से भी आए कि कुछ अपनी पर्सनल गाड़ी भी करके लाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। In Auraiya, we decided to venture deep into the villages and see how the tracking, tracing, isolating were functioning and what the returned migrants were up to. We went to 3 villages, Burhadana, Ajitmal and Azadpur. Currently we are in Burhadana village of Auraiya district. We are here to see what happened to the people that you see walking, what happened to them. They reach eventually, right? Some of them reach at least. So let's hear what their stories, what stories do they have and how their experience has been. We have already met people who have walked the entire distance on feet. We have met people who had hired private cars and reached. 250 किलोमीटर पैदल आए, आगे बाद फिर थोड़ी दूर पर बसें मिल गई थी। अच्छा, कहाँ जाके पहली बार बस मिली? हम उनसे आए पलवल तक पैदल, फिर उनसे हमें थोड़ी दूर पैदल चले, फिर बस मिली हमें, फिर मथुरा उतार दो हमें। तो कहाँ उतारा बस फिर से? मथुरा। फिर मथुरा से यहाँ, फिर मथुरा से पैदल आई, फिर मथुरा से आगे तक मिली, फिर हमें किसका उसे बहुत इटावा तक, फिर इटावा से फिर पैदल आई। We are in Ratnipuri village. We are currently investigating or inspecting what the system is like in the villages of UP. In cities, the system is supposed to be more coordinated. But let's hear what the system is like for the people who came from the outside. काम धंधा कोई चल नहीं रहा है, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेगा बंदा? घर जाएगा। जाएंगे, देखेंगे व्यवस्था अगर सही होगी माँ की तो जाएंगे, जब कोई होगा ही नहीं साधन तो क्या करेंगे जाकर? अब ये इसका तो कोई पता नहीं है, ये कब तक चले, 10 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, अब तक तो इतना वहाँ किराया ही भाड़ा हो जाएगा, तो आदमी क्या करेगा जाके? वहाँ इतने का तो सामान सट्टा भी नहीं होगा। राजस्थान से आया हूँ। कितना दिन लगा राजस्थान से आने? वैसे एक टवेरा गाड़ी से आया था। एक रात 1 दिन लग गया। क्या वैसे काम बंद ही हो गया, लॉक हो गया ना, इसलिए घर पे आना पड़ा। मजबूरी है, जब कोरोना वायरस चल रहा है ना, इस वजह से। अब खाने के पैसे नहीं, फिर
थे, क्या करें, मजबूरी थी। उधर से कोई गवर्नमेंट से सुविधा नहीं मिली हमको। यहाँ के ऐसा क्या हुआ? वहाँ पे क्यों, मैं रोजगार हूँ, वहाँ पे कोई अपना घर तो है नहीं, कमाने के लिए गया था। ठीक है, वहाँ पे जब कमाई नहीं होगी तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा। मेरे साथ करीबन आए हैं 3000 लड़के। 3000 लड़के। वहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी सुन नहीं रहा था, ना सरपंच सुन रहा था। किधर का? हरियाणा का। कोई आपको मदद नहीं? कोई मदद नहीं करने का। मकान मालिक बोल रहा था भाई किराया चाहिए, किराया कहाँ दूँ, कमाई नहीं रहा, किराया कहाँ दूँ मैं। सब आम जनता ने बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, पी लिया, खा लिया, लेट गया जहाँ मर्जी है। आपने ट्रेन या बस क्यों नहीं लिया? ट्रेन बस मिली हो जब तो, ट्रेन बस चली आपको मिली कहीं रास्ते पे। सरकार तो अपनी बैठी है। सरकार ने करो अभी तक कुछ। बुलाओ ना मुख्यमंत्री, कौन जूता मारे वाकई इन पे। बस 20 दिन हो गए। मैं गाजियाबाद से लौटू। अच्छा, वहाँ पे क्या काम करते थे? सिलाई काम करते हैं। पहले मैंने वहीं औरैया में चेकअप करवा दिया था। अच्छा, आते वक्त वहीं पे पहले नंबर चेकअप करवाया। इसके बाद मैं गांव आया, फिर मैंने प्रधान को सूचित किया। मैं आ गया हूँ गांव में, तो प्रधान ने ये कॉपी मंगाई, तो उन्होंने अपनी फ़ोटो कॉपी करके वर्कशॉप कर दिया। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं। खेती नहीं है आपका? खेती है। अच्छा, अभी खेती कोई काम नहीं है, तो जो कुछ है तो अपने पहले का गल्ला रखा तो वही खा रहे हैं। कुछ राशन मिल गया था। कितना दिन ऐसे चलेगा अगर खेती, जब तक पानी बारिश नहीं होता? तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा। कुछ उधार विधार लेंगे तब फिर चलाएंगे, और क्या करेंगे। जब वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो किराया भी दे, बिजली का बिल भरे और खाने का दे, अब काम चलता नहीं तो फिर क्या करें। हमारा भतीजा आया है पुणे से। हाँ, पुणे से। कैसे आए आप पुणे से? पैदल आए हैं सर। कैसे? पैदल। वहाँ से रास्ते ट्रक से पैदल आए, फिर पैदल आए। पूरा पैदल है? ट्रक मिला था बीच में? नहीं, भी इधर MP के बॉर्डर से मिल गए ट्रक। किधर तक? तुम इधर और ये तक कैसे आए? पैदल आए उधर से। वहाँ से रास्ते पर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। बीच में कितना दिन लगा आपको पुणे से यहाँ पे आने के लिए? 15-16 दिन लग गया था सर। ऐसे गांव में आए तो हमने इनको स्कूल में ही रोक दिया। ये हमारा स्कूल है। नाइट भर इनको वहीं रुकाया, रात भर सोए, हमने बिस्तर वगैरह दिए। हमारे चाचा के लड़के हैं, इनको फिर सुबह में हमने चचोली भेजा, क्योंकि प्रधान तो देखें हमको जानकारी नहीं सर क्वारंटीन क्या होता है, 14 दिन कहाँ रखें क्या। हमने स्कूल में इतना था कि हमने 14 दिन के लिए यहाँ पे इनको रोक दिया, एक दिन के लिए नाइट भर। सुबह होके इनको सुबह भेजा। जब चचोली गए, यहाँ जो अस्पताल पड़ता है हमारा, वहाँ से इनको चेकअप हुआ तो देखा तो वहाँ इनका ठीक था, तो जब इनको घर में घुसने दिया सर। कोरोना जैसे कोई बाहर से आता है तो उसे फर्स्ट तो आप हॉस्पिटल ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके उसका चेकअप कराएं। चेकअप कराने के बाद उसे अपने घर पे होम क्वारंटाइन के लिए, अगर वो है क्वारंटाइन लायक, होम क्वारंटाइन लायक, अगर नहीं है तो देन ये जो स्कूल वगैरह में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे उन्हें रखो। जी सर, जैसे ही पता चलता है आशा बहन जी भ्रमण करती हैं और हम भी अलर्ट रहते हैं। जैसे कोई आता है हम उनको तुरंत क्वारंटाइन की सारी विधियाँ बताते हैं और वो फ्लायर चिपका के आते हैं 21 दिन के लिए, और उनको बता देते हैं 21 दिन तक आपको क्वारंटाइन में रहना अपने परिवार के सदस्यों से भी। और जो परिवार का एक सदस्य है वो 24 घंटे में या 12 घंटे में एक बार ही बाहर जाएगा सब्जी कुछ लेने के लिए। उनका टाइम पूछते हैं, उनका टाइम उस फ्लायर पर डाल देते हैं। हाँ सर, डर तो रहता ही है, लेकिन सर भेदभाव नहीं हुआ है। हाँ, भेदभाव नहीं हुआ। टीवी में देखते रहते लोग बाग, बताते रहते, हम भी मतलब साथ में जाते हैं कि उनसे भेदभाव ना करो, उनको ऐसे नज़र से ना देखो कि ये कोरोना का पेशेंट है, हम इनसे दूरी बना के रखो। लेकिन जो मन का व्यवहार है वो अच्छा रखिए इनके प्रति, सोच अपनी अच्छी रखिए इनके प्रति। अभी 2 महीने में बाहर से करीब 15-20 लोग सर आए हैं। कुछ लोगों के 21 दिन हो गए तो हमने उनके फ्लायर हटा दिए जाके, और उनको बता दिया कि अब भी आप क्वारंटाइन से मुक्त हो, लेकिन फिर भीड़ वाली जगह पर ना जाएँ। We have seen awareness, or we have heard about awareness in people about COVID-19 and what's to be done, how it is not to be hidden, how it is to be reported to the nearest ASHA worker or to a doctor or the COVID helpline. So that awareness is there.
at the Kanpur Central railway station for few hours now. Yeah, but as it turns out, we have realized that apparently there is an order which prohibits media people, prohibits journalists from reporting from this station. And from what I gathered, it's actually an unwritten order. Yeah, it's an unwritten order. So, like, a group of policemen, like several, came to us and asked us to leave. When we asked, can we record your statement? Where is the order? Can you just tell us who issued this order? So, we verified with the local journalists as well. Media people are not being allowed. Common person can go in and sit there. This could be triggered by a couple of reasons. 2 days back, apparently there was something related food. Apparently there was a congregation, some part of the sabzi, the vegetable dish, got rotten or something, or there are many other stories. So probably the authorities don't want those stories to come out. That's why they're banning journalists, gagging media from reporting from Kanpur railway station. अरे यहाँ बाहर से लोग डेली आते हैं यहाँ खाना देने गरीबों को, मजदूरों को, जो लोगों को खाने के लिए नहीं होता है, बाहर से यहाँ आते हैं खाना देने, उस पर भीड़ लग जाती है। उस पर यहाँ पर परसों ऐसा हुआ था कि खाना दे रहे थे, खाने के लिए लोग भूखे प्यासे हैं, तो गाड़ी देख के खाना भीड़ लग जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर अधिकारी लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ खाना मत बांटिए, उसी की वजह से उनके यहाँ पर बहस हो गई थी परसों। So we have been reading stories, we have been seeing situations on railway stations. We have all seen that absolutely touching video of where the child is trying to wake up his mother. That's all happening in railway station. The migrant crisis from the streets, from the highways, it has got transported into railway stations, where the authority doesn't want us to show the truth anymore because truth might hurt sometime. And as we can hear in this point, they are saying that after there was some congregation few days back where common people, they were distributing food from the migrant workers who were coming here. They have stopped all this, and he is saying the people who are coming, they're complaining of not getting water, not getting enough food. So government won't provide them with enough sustenance, and it won't even let the citizens ask these questions. जब से लॉकडाउन लगा हुआ है भाई साहब, वो परिस्थिति आ गई है कि अगर लोग गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली, लेकिन जो हमारे भाई बनते, जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों ने भाई हम लोगों की पूरी मदद की, खाना पीना, मैं नाश्ते पर ऑटो चालक है भाई। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव हरियाणा से, वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्यों जा रहे हो आप? इसलिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के चक्कर में काम धंधा है नहीं है। अच्छा। ऑटो में सवारी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। रूम भाड़ा नहीं छोड़ रहे हैं मकान मालिक। अच्छा। तो कैसे संसार चलेगा? तो ऑटो तो अपना घर ही जा रहे हैं, अब नहीं चला, अब गुड़गांव अभी भी सवारी भी नहीं हो रहा ना, ऑफिस बंद है तो बैठेगा कौन? अच्छा। ऑफिस ही जब चालू नहीं होगा तो बैठेगा कौन? अच्छा। तो आप कितने लोग जा रहे हो? यहाँ हमारे पूरे परिवार है। 20-25 लोग? हाँ, आराम से 20 लोग हैं। 20। अच्छा, 20 लोग। हाँ, तो ये पास कैसे मिला आपको हरियाणा से वेस्ट बंगाल जाने का? पास तो दे रहे हैं सरकार, इजीली दे रही है। हाँ, ऑटो को। अभी हम पूरा रास्ते में आ रहे हैं, पुलिस वाला हमें अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी नहीं टोका है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो रात को वहाँ पे रुक रहे हो आप लोग? रात को होटल में रुके हुए। When we reached the crucial city of Kanpur, there was one good news that we heard. Apparently, after 2 months of lockdown, the water of the Ganges has become the cleanest since people can recall. And why wouldn't it be? जो कि कानपुर में लॉकडाउन की वजह से ये 20 साल बाद गंगा का पानी का नतीजा ये है, हमारी जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ और जो घरों का कचरा फेंकते थे नदियों में, उसकी वजह से बंद होने की वजह से आज ये स्थिति है, पानी एकदम 20 साल के तरीके पहले के तरीके फिर हो गया। Kanpur's famous tanneries have anyway been suffering for years now, and at the onset of lockdown, they have come to a complete halt. 2 महीना तो कंप्लीट लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं, कोई वर्क नहीं हुआ है, एकदम टोटल बंद रहा है। और लॉकडाउन के बाद जो है अब
कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग अपने वर्कर को काम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वर्कर को काम हम लोग दे नहीं पा रहे हैं एकदम जो है। कितना मशीन है यहाँ पे? यहाँ पर जो है ये 4 मशीनें हैं। अच्छा, उनमें से कितने चल रहे हैं अभी? अभी आप देख रहे हैं सिर्फ एक चल रहा है, वो भी हाफ टाइम चल रहा है। अब टैनरी चालू हुए करीब 1 हफ्ता हो गया है। तो पहली बात ये है कि लेबर की प्रॉब्लम बनी हुई है। कुछ टैनरी आज भी 1 हफ्ता हो गया, अभी तक बहुत सी टैनरी चालू नहीं हुई हैं लेबरों की वजह से। कुछ चालू भी हो गई हैं मगर पूरी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, endangering lives and livelihoods of thousands of workers and traders attached to an industry that the entire country is proud of. On the 11th day after traveling more than 600 kilometers, we finally reached the destination, Lucknow. Here our focus was mainly on putting our observations in the larger context. I don't think the government has handled any situation. I think the people of UP have been out on the roads and handled the situation because the government, when the crisis came, is still taking certain knee-jerk decisions. In comparison to other states which have like a similar population to UP, like states like Rajasthan or Maharashtra, UP has done far more better. The healthcare system at the root level, which we call the primary healthcare centers or the community healthcare centers, they have done well. Obviously, there is a disconnect between ground reality and things happening in AC rooms. This disconnect has always remained here. Still, government is doing, better, but I think it's not sufficient. And every time something unfolds, like the migrant crisis should not have happened. We should have made things available to the people on the border the first time we saw it in Ghaziabad. After that, they just started walking. We provided trains too late. We provided buses too late. We focused on people who really could reach out for help. We sealed borders when we shouldn't have, plus our quarantine centers. Have we ever cared about the migrants? I have a question for the government. Have we ever cared about, हमने कभी उनकी सोची है? Take an example of बुंदेलखंड. बुंदेलखंड में like from the last 3 decades बहुत ज़्यादा migration होता है. Take parts from Madhya Pradesh, they all come to Jhansi, they board trains for different cities in India. जब वो जा रहे थे तब आपने चिंता नहीं की, अब आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि यू विल प्रोवाइड जॉब्स अंडर मनरेगा. अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से फैला है उससे कितना अनरेस्ट आएगा स्टेट में, इसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा. कोई प्लानिंग है गवर्नमेंट के पास? आई थिंक मुझे लगता है कि प्रेस नोट्स के अलावा और कुछ गवर्नमेंट नहीं दिखा पा रहा है. सो दैट वाज some interesting takes on how UP has been dealing, what are the challenges that lies ahead, because our trip will be over, but the trip means of so many migrant workers won't be over. There will be new challenges for the state, for the people. Hopefully people will be benefited from future actions. After 600 kilometers, countless adventures, a terrific tan and humble hearts later, we were finally at the end of our 13-day journey. From sweltering heat to spending nights at risky places to getting questioned by local intelligence to actually helping people out. It was a journey of a lifetime. Our biggest takeaway? We are not alone. We are just one of the many. The pandemic and the unplanned lockdown impacted and changed lives for so many that maybe all of internet is not enough to document. Real people, real stories. The wheels keep rolling.